all the students of class 9. Welcome to all of you in physics class. Okay. Today we will discuss about balanced and unbalanced force. Okay. And our topic is force and laws of motion. Our second chapter of physics is force and laws of motion. And our topic is also balanced and unbalanced force. I would like to explain you with the help of an example. Okay. So listen carefully and watch carefully to all of you. Okay. Here is balanced force. Okay. If the resultant of all the forces acting on a body is zero, the forces are called balanced forces. A body under the action of balanced force does not change its position of rest. Okay. Does not change its position of rest. That means resultant force here is given. If we acting various kinds of forces on the body, then there is no displacement takes place in the body, then it will takes place the balanced force. Okay, balanced force does not move anybody. Okay, and so I would like to explain you with an example of heavy box. There is a heavy box. Okay, and we consider this heavy box as a balanced force. Okay, there are four kinds of forces acting on this heavy box. Here is written, heavy box does not move, because four kinds of forces acting, so the heavy box does not move anywhere. The first force is force of our push. Force of our push, that is forward. We push anybody by applying force, then it wants to be go forward. And against force is also force of friction. This friction force is the force between the heavy box and this plane surface is called friction force. Friction force opposes the force of our push, so it is given direction is opposite to each other. Here is the arrow and this is the arrow. The both arrow are opposite to each other, so it also this force, frictional force, overcome this force of our push, so it does not move. And another two forces acting, force of gravity, as you know that force acting by our earth towards itself is called force of gravity. So the weight of the box is towards downwards towards the earth, and there is an opposite force and equal and opposite force acting. This is called force of reaction exerted by the ground. Ground also opposes this force and go upwards. Okay, and there are four kinds of forces are acting on the box, heavy box, and heavy box does not move because all the forces are acting against to each other. Okay, and here is given once again. I explain you. Suppose a heavy box is given, the force of our push, the force of our friction which appears to push, force of gravity and force of reaction, and so this is the box. Heavy box does not move. And another is unbalanced forces. Okay, unbalanced forces means if the resultant of all the forces acting on a body is not zero. Okay, the force acting on the body is not zero, then it is the unbalanced force. And listen that unbalanced forces move anybody. Okay, unbalanced forces, if we apply unbalanced forces acting on the body, then it will also move to the stationary body towards any direction. Okay, this is our balanced force and unbalanced force. Once again I'd like to explain you in Hindi. Okay, आप देखिए इसको ध्यान से एक बार फिर से मैं बता दूं. आज का टॉपिक है हमारा बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स. ओके, और फिजिक्स क्लास में क्लास 9 को आप सबको फिर से वेलकम है. एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. आप देखिए ये वीडियो हम जो तैयार किया हमने, वो देखिए रिजल्टेंट फोर्सेस के बारे में दिया कि किसी बॉडी पर किसी एक जगह बहुत सारा फोर्सेस जब काम करता है एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो. मतलब कहना मतलब कि जीरो का मतलब कि फोर्स एक दूसरे को अपोजिट फोर्स लगाते हैं तो जीरो. दैट मीन्स किसी बॉडी के अंदर में कोई मूवमेंट नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, तो ये हमारा
खासकर कहलाता है बैलेंस फोर्स। अब देखिए यहाँ पे एक हैवी बॉक्स, एक भारी बक्से के का एग्जाम्पल हमने दिया कि कैसे ये डिस्प्लेसमेंट इसमें नहीं हो पाता, मूवमेंट नहीं हो पाता। यहाँ पर 4 काइंड्स ऑफ फोर्स है, 4 तरह के फोर्स एक्टिंग कर रहे हैं इस बॉक्स पे। पहला फोर्स ऑफ आवर पुश, पुश कहते हैं आपको धक्का मारते हैं आगे की ओर बढ़ाने के लिए, फॉरवर्ड फोर्स होता है। ठीक इसके अपोजिट फोर्स लगता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स है आपका ये जो बॉक्स है और ये जो सरफेस है, इन दोनों के बीच में ये अपोज करता है, रोकने का काम करता है हमारा फोर्स ऑफ आवर पुश को, इसी के बराबर ये फोर्स लगाता है। इस कारण से डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट बॉक्स में नहीं हो पाता। फिर एक तीसरा फोर्स देखिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। आप सब जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटी होता है द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ अपनी और किसी वस्तु को खींचती है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहलाता है वो। और तो नीचे की ओर खींचता है वो बल लगता है। फोर्स ऑफ ये जो वेट ऑफ द बॉक्स है वो नीचे की ओर टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स लगता है, इस कारण से ये कहलाता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक इसके अपोजिट एक फोर्स लगता है ऊपर की ओर, फोर्स ऑफ रिएक्शन कहते हैं हम इसे, ठीक है। और ये हमारा एग्जर्टेड बाय द ग्राउंड, ये ग्राउंड के द्वारा लगता है, ग्राउंड ऊपर की ओर ये फोर्स काम करता है। इस कारण से आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग ये जो 4 तरह के फोर्सेस हैं अपोजिट फोर्स से लग रहे हैं। ये देखिए फोर्स ऑफ आवर पुश, इसको ओवरकम करता है, रोकने का काम करता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये देखिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वेट ऑफ द बॉक्स के रूप में लगता है। ये इसका अपोजिट एक फोर्स है, इक्वल अपोजिट फोर्स लगता है, इसके बराबर एक फोर्स लगता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फोर्स ऑफ रिएक्शन। ये ऊपर की ओर खींच के रखता है बॉक्स को, इस कारण से बॉक्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट स्थानांतर नहीं हो पाता है, और तब इसे हम कहते हैं क्या, ये हमारा कहलाता है हमारा बैलेंस फोर्सेस। ओके, और यदि ये तो बैलेंस फोर्स हो गया हमारा, और इसके बाद अनबैलेंस फोर्सेस हमारा है। इसमें हम कहते हैं क्या, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किसी वस्तु पे हम बल लगा रहे हैं, कई तरह के बल लग रहे हैं, बल लगने के बाद में कहीं ना कहीं कोई ज़्यादा फोर्स लग जाता है तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, बॉक्स के अंदर में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, अधिक ताकत से हम आगे बढ़ा देते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट जब होता है तो कहीं ना कहीं वो फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट जब भी होगा तो उसका एक्टिंग जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, टोटल फोर्स होगा, वो 0 कभी नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स में याद रखिए कि मूवमेंट हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट होगा, और बैलेंस फोर्स में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। कोई बड़ी स्टेशनरी है, स्थिर है तो स्थिर रहेगा, और ये हमारा अनबैलेंस फोर्स जब भी लगेगा किसी वस्तु पे तो आगे की डिस्प्लेसमेंट होगा, मूवमेंट होगा। और ये अच्छी तरह से ये वीडियो आप फिर से आप वॉच करेंगे, और आप सबको फिर से आप सबको इस कोविड-19 का जो समय आया है, इसमें मैं फिर से आपको बताऊं कि आप सारे लोग बिल्कुल सावधानी से घर में रहिए, साफ़ सुथरा रहिए और बाहर नहीं निकलिए। और ये मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को अच्छी तरह से आप देखेंगे और अपनी कॉपी में नोट करके आप हमें बताएंगे और कॉपी चेक करने को भी देंगे। ठीक है, आप सबको फिर से ऑल द बेस्ट, और आप सबको फिर से एक बार गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू, वंस अगेन थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। ओके।